Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. So this is Kanchan here, and here I welcome you all to the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for first to 10. Okay, so here I'm back with the session number 2 of lines and angles. So far हमने lines and angles के basic concepts कर लिए थे, right? तो आज हम थोड़ा सा उसी concept के आगे करते हुए we will be doing about parallel lines. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट ये सब आज हम करने वाले हैं बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू मोर अबाउट स्विफ्ट लर्न सो बेसिकली स्विफ्ट लर्न is providing 100% live and interactive classes, right? अभी तो सबको पता चल गया होगा, ठीक है? Personalized attention batch with maximum 6 students. Yes, we don't take more than 6 students in a single batch. भाई जो पर्सनलाइज अटेंशन का जो कंसेप्ट है ना वो फुलफिल करना है पूरा, ठीक है? तो वी विल नॉट बी टेकिंग मोर देन 6 students. After that, a dedicated academic mentor team is there. Yes, a mentor team is there which is whole soul working for your progress. So they will be tracking you if you will be lacking somewhere. Syllabus CBSE, ICSE, State Board, सारे syllabus we are covering here. After that, detailed progress report. So that is called the PTM. Yes, PTM that is absolutely online is conducted here. जहाँ पे आपकी growths, आपके ups and downs यहाँ पे discuss करे जाते हैं. Okay. So now when I'm talking about unlimited practice tests and subjective tests. So suppose a concept is over, right? एंड कंसेप्ट भी पढ़ लिया, चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो भी कर लिए, अब प्रैक्टिस की बात आती है, राइट? सो स्विफ्टलर्न विल बी प्रोवाइडिंग यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट अलोंग विद सब्जेक्टिव टेस्ट सो दैट आप एग्जाम में फुल प्रिपेयर होके जाएंगे. ओके, स्विफ्टलर्न academic test series, this is a basically a very important thing. With this academic test series you can compete with other students in the same platform of your same grade. ओके okay? उससे फायदा ये होगा कि अगर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी ही जैसे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अपनी ही क्लास के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं सोफलर में, उनमें से आप कहाँ पे पोजीशन में हो, ठीक है? चलिए, तो क्या करना है, फॉर ऑल दीज यू कैन बुक अ फ्री ट्रायल. फ्री ट्रायल का मतलब ही एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है? फॉर दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सिंपली यू कैन टू द गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं. Subscribe, yes, those who are new here, kindly subscribe it, press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button, make कर दीजिएगा. Okay, so here we comes with the lines and angles. So today we are going to do all about transversal, angle made by transversal of parallel lines, and yes, checking for parallel lines. Is the lines are parallel or not? Okay, so can anyone tell me what are supplementary angles? Supplementary angles, we have turned about all the angles, right? Complementary angles, supplementary angles, हम लोगों ने last test में बहुत कुछ discuss किया था. So supplementary angle is more over, okay, I will be leaving it for you. आप मुझे chat box में, comment box में आप मुझे बता सकते हैं what are supplementary angles. Okay, now identify the types of angle is the figure A, B and C. I hope it is very simple दिख रहा है, बहुत simple दिख रहा है. angle ए वाला फिगर जो है वो एक्यूट है, बी वाला ऑब्ट्यूज है, मैंने बताया था. एल से देख लीजिए, एल 90 डिग्री होता है, एल से छोटा है तो एक्यूट, एल से बड़ा जा रहा है तो ऑब्ट्यूज, और तो भाई दोनों एक्यूट ही है, ठीक है? और अगर स्ट्रेट जा रहा है तो दैट वी कॉल स्ट्रेट लाइन. आई टोल्ड यू अबाउट रिफ्लेक्स एंगल ऑल्सो, जो स्ट्रेट से बड़ा हो जाता है ना, दैट विल कॉल टू बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है? आप अपनी घर पे जो वॉल क्लॉक है, यू कैन वॉच द hour hand and minute hand for the particular angles. That will be more, that I think that is the best example of angles, right? Acute angle, सपोज 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 12 से 3 तक 90 डिग्री बनता है, तो 12 से 3 अगर आप छोटा ले लेंगे तो वो एक्यूट बन जाएगा. 12 से 6 के बीच में जितना बनेगा मोर देन 3, दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. और 12 से 6 में चला गया तो स्ट्रेट एंगल, और 6 से बड़ा चला गया, 12 से 6 के होते हुए 8 में चला गया तो दैट विल कॉल टू बी द रिफ्लेक्स एंगल. Okay, so now it's a very important thing to understand what is a transversal. I already told you about parallel lines क्या होती है. चलिए पहले हम transversal discuss कर लेते हैं. Let's not discuss about parallel lines. A line which intersect two or more lines at a distinct point is called a transversal. एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट लाइंस को, मेरे पास दो डिफरेंट लाइंस हैं, इस लाइन को, इन दो डिफरेंट लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे, लेट मी हैव वन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना, एक लाइन आई
घूमते घूमते, और इन्हें इसने दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है दैट विल कॉल टू बी द ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ये दो लाइन ऑलरेडी है, अब ये पैरेलल है नहीं पैरेलल है अब ये हम मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ये दो लाइन जो पैरेलल है इसको अगर एक ट्रांसवर्सल एक तीसरी लाइन आ जाएगी जो उन दोनों लाइन को कट करेगी, दैट विल कॉल टू बी द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। क्लियर? द मोमेंट ट्रांसवर्सल आएगा ना बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे। आप देखिए द मोमेंट, अभी तो ये दो लाइंस हैं इनके बीच में कोई एंगल्स नहीं है ना, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है इनके बीच में। द मोमेंट इनको आके एक ट्रांसवर्सल कट करेगा बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये इंटीरियर है। याद रखिएगा इंटीरियर मतलब दो लाइंस के अंदर का जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है इंटीरियर, और जो बाहर का एरिया होता है वो कहलाता है एक्सटीरियर। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अंदर वाला एरिया इंटीरियर और बाहर वाला एरिया एक्सटीरियर। ठीक है, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। 4 3 5 6 आर इंटीरियर एंगल, 1 2 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लाइंस हैं, दो लाइंस के अंदर जितने एंगल्स बन रहे हैं भाई वो इंटीरियर, जितने बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर। ठीक है, चलिए नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, चलिए मैं कलर कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 and 5, okay let me take a bold one, yes 1 and 5, okay now 2 and 6। तो कॉरस्पॉन्डिंग में देख रहे हैं आप कॉरस्पॉन्डिंग में क्या बन रहा है। अब इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी मैं, बहुत इजी है। 4 and 7, तो देखिए जहां 4 है 4 के नीचे वाला, 4 नीचे है ना लाइन से, तो दूसरी लाइन का भी नीचे वाला एंगल ले लो, और पिंक ले लेते हैं, और हमने कहा दिस 3 and 8, ये सारे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके जस्ट गिव मी 1 minute। Yes, so sorry, I was just checking out something. Okay, so I was saying that 1 and 5, 2 and 6, 4 and 7, 3 and 8, they are making a pair of corresponding angles. Why I'm calling them pair? Because they exist together. सिंगल वन कोई corresponding एंगल नहीं होगा, सिंगल वन जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के corresponding होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। द नेम इज, नाम में ही काम है भाई, ये आप याद रखिएगा, नाम में ही काम है। तो ऑल्टरनेट बोल रहा है तो ऑल्टरनेट ले लीजिए। 4 विल बी ऑल्टरनेट टू 6, 3 विल बी ऑल्टरनेट, देखिए क्रॉस कर लीजिए। 4 किसके ऑल्टरनेट में जा रहा है, अंदर देखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किस चीज की बात हो रही है, ऑल्टरनेट। तो 4 के ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है, 6, और कहाँ है, अंदर। 3 के ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है, 3 के ऑल्टरनेट है 5, कहाँ, अंदर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ऑल्टरनेट मतलब क्रॉस कर दीजिए, अंदर ही अंदर। अब अगर एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो भाई 1 का एक्सटीरियर, 1 बाहर है तो 8 भी बाहर होगा, लेकिन क्रॉस में होगा। 2 बाहर है तो 7 भी बाहर होगा, किस में होगा, क्रॉस में होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, अभी आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगी मैं, लेकिन बिफोर दैट लेट्स बिना शॉर्टकट के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, देन जो भी शॉर्टकट बताऊंगी वो ज्यादा समझ में आएगा। राइट, नाउ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। अब सेम साइड क्या होता है, सेम साइड मतलब इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटीरियर, सबसे पहले ये देखिए इंटीरियर कौन है। ओके लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ये आपका ट्रांसवर्स है, इसके इंटीरियर कौन है, या तो यहाँ का एरिया है या तो यहाँ का एरिया है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ईदर एंगल्स आर हेयर और ईदर एंगल्स आर हेयर। तो पेयर, पेयर की बात हो रही है, इंटीरियर अंदर होने चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो भाई अगर मैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एंगल 4 किसके है, एंगल 5 के। ये दोनों इंटीरियर भी हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी हैं। 3 और 6 they are also interior and same side of the transversal. So always remember interior angles on the same side of the transversal, ये alternate नहीं है,
ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आपको इसी नाम से इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देख लेते हैं किस तरीके से। पैरेलल लाइन, ये देखिए पैरेलल लाइन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पैरेलल लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ा देंगे दे विल नेवर, ये देखिए अपने ओरिजिन से लेकर इनको मैं एंडलेसली कितना भी बढ़ा दूंगी दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अब नॉन पैरेलल लाइंस देखिए, नॉन पैरेलल लाइंस को अगर आपने इंक्रीज कर दिया, मैंने आपको कहा था ना एक दिन कि जब हम नॉन पैरेलल लाइन को, अभी आपको दिख रही है, अभी आपको क्या दिख रही है कि ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अभी ये पैरेलल हो गई, यस, अब ये पैरेलल हो गई। अब आप इनको कहीं भी आगे जाके आप बढ़ाते रहिए, दे विल नेवर नेवर एवर एवर नेवर एवर इंटरसेक्ट। बट द मोमेंट मैंने कहा था कि आप इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको डिक्रीज कर दो, कम कर दो, ये देखो अपने आप मीट करेगी। अभी तो नहीं दिख रहा है ना मीट करेगी, द मोमेंट यू विल बी इंक्रीजिंग, आप उन लाइन को इंक्रीज करोगे वो अपने आप इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आपकी पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन है। अब समझने की बात ये है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए आपको इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस लग रहा है। पैरेलल लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 81 है तो यहाँ पे भी 81 है, यहाँ पे भी 99 है तो यहाँ पे भी 99 है। 81 और 99 का कॉम्बो बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है। यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, ये देखो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, बट द मोमेंट मैं इसको भी पैरेलल कर दूं, देखो वही कॉम्बो बन जाएगा। द मोमेंट देखिए, द मोमेंट मैंने दो लाइन को पैरेलल कर दिया, तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आया, आपको समझ में आया कि इफ दिस इज 97 तो ये भी 97 आ रहा है, ये 83 है तो ये भी 83 है। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं, अभी तो बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि व्हेन लाइंस विल बी पैरेलल, corresponding angles will be equal। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगेन बता रही हूँ, जब लाइन पैरेलल नहीं है, ये देखो ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। द मोमेंट टू लाइंस विल बी पैरेलल, कैन यू सी, द मोमेंट टू लाइंस विल बी पैरेलल, ये देखो, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अब मैं इसको कहीं भी बढ़ा दूं, इधर बढ़ा दूं, ओके लेट्स नॉट चेंज दिस, मैं इधर बढ़ा दूं इसको, मैं कहीं भी बढ़ा दूं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट एंड दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल लाइन। सो 83, अब ये 84 हो गया ना, तो वो थोड़ा सा देखिए चेंजिंग हो जाती है, लेट मी मेक इट 83। So that's why I'm saying the moment I will make these line parallel, the corresponding angles will be equal. Corresponding angles के अलावा क्या equal दिख रहा है भाई, ये 97 है तो ये भी 97 है, और ये कैसे एंगल्स हैं, क्रॉस हो रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चल गई कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये देखिए 83 83 के इक्वल है, ये देखिए ये वाला 97 ये वाले 97 के इक्वल है, क्रॉस कर दीजिए, आई टोल्ड यू क्रॉस इक्वल होगा, और यहाँ पे 83 का क्रॉस इक्वल है, राइट। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तीनों के सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ ट्राई टू ऐड 97 एंड 83, मैंने बोला था ना एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का सेम साइड है, छुपा लीजिए, देखिए ट्रांसवर्सल का सेम साइड है। तो इसमें अगर मैं करूं 97 प्लस 83 कितना आ रहा है, 180। यहाँ पे भी मैं करूं 83 डिग्री प्लस 97 डिग्री, मेरे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दो एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री आ रहा है। सो वी कैन से दैट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। पूरा चैप्टर मैं आपको यहीं पे पढ़ा सकती हूँ, कैन यू नो, पूरा चैप्टर by using this single visualization I can teach you whole chapter, ठीक है। that's why I'm saying ये visualization बहुत important है, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो corresponding angles, alternate angles, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे हम याद करेंगे कि कौन सा corresponding है, बहुत easy है, but let's do this first। alternate interior angle, alternate exterior angles और angles on the same side of the transversal are supplementary, ये होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आप इसको प्लीज रिपीट करके जरूर देखिएगा, सो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स। अभी यहाँ पे देखो कितना खेओस हो रहा है ना, माय गॉड, और यहाँ पे देखो कितना स्मूथ सब कुछ चल रहा है, राइट, यही डिफरेंस है। सो नाउ हियर व्हीकल्स आर मूविंग इन अ zigzag manner and here vehicles are moving in a parallel line,
ओके, सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पैरेलल लाइंस कि जब दो लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जब हमेशा सेम होगा तो वो लाइन पैरेलल लाइंस कही जाएंगी. ओके, दे विल कॉल टू बी द पैरेलल लाइंस इफ द डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल. मैंने आपको भी विजुअलाइजेशन में भी बताया, द मोमेंट यू विल डिक्रीज द डिस्टेंस, आप कहीं डिस्टेंस ज्यादा है कहीं डिस्टेंस कम है, तो वो क्या बन जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन ये आपको करवाया हुआ है. नाउ अब बात आती है कि ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइंस जो इंपॉर्टेंट है. तो मैं ऑलरेडी आपको विजुअलाइजेशन में बता चुकी हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. तो 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 5 के. 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 6 के. लेट मी शो यू, बहुत सिंपल है. एंगल 1 जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल 5 के. भाई सेम साइड ऊपर ऊपर, सेम साइड ऊपर ऊपर. ठीक है, यहाँ पे भी सेम साइड ऊपर ऊपर. ये देखो, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो गई ऊपर ऊपर. सेम साइड नीचे नीचे. Here also same side नीचे नीचे. They will call to be the what? Corresponding angles. अब corresponding angles को याद रखने के लिए F शेप याद रखिए. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे F बन रहा है, ये देखिए. Let me make for you. ये और ये और ये. Similarly यहाँ पे ऐसे F बन रहा है, ये देखिए ये. तो F में जो एंगल्स बनते हैं ना वो देखिए, यहाँ पे भी F बन रहा है. तो पैरेलल लाइंस चाहे किसी भी सेंस में दी हो, आपको ऐसे में निकालना है, आपको ऐसे में निकालना है, आपको ऐसे में निकालना है. पैरेलल लाइंस ऐसे दी हैं, पैरेलल लाइंस ऐसे दी हैं, डजंट मैटर. आप एफ देख लीजिए, तो जो एफ शेप के जो एंगल्स होते हैं, अब आप जब नॉर्मल एफ बनाएंगे, अब आप बोलेंगे मैम नॉर्मल एफ, आपने नॉर्मल एफ बनाया, तो नॉर्मल एफ आपने बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ? जो ये वाला एंगल है, लेट मी चेंज इट, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. तो आप इसको एफ शेप से लर्न कर सकते हैं. ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल के लिए जेड याद रखिए. ऑल्टरनेट एंगल के लिए आप जेड, ये देखिए जेड बन रहा है कि अब जस्ट डोंट टेक जेड ऐसा ही होता है. भाई जेड आप ऐसे भी ले सकते हैं, जेड आप ऐसे भी ले सकते हैं, जेड आप ऐसे भी ले सकते हैं. तो किसी भी सेंस में अगर आपको पैरेलल लाइंस दी हैं, उस पैरेलल लाइन में आप जेड बनाइए. अगर z वाले एंगल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे z बन रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है. यहाँ पे ऐसा z बन रहा है, ये भी तो एक टाइप का z ही है ना, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है. तो फॉर द ऑल्टरनेट एंगल्स रिमेंबर z शेप, एंड फॉर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल यू कैन रिमेंबर f शेप. सो सॉरी. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और कंसेप्ट समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ऑलरेडी हम ये विजुअलाइजेशन में कर चुके हैं. नाउ ये भी मैंने आपको बताया था, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. हमने अपने विजुअलाइजेशन में कराया था ना, मैंने आपको वहीं पे बोला था. सारा चैप्टर में उसी विजुअलाइजेशन में पूरा फिनिश अप कर सकती हूँ, राइट? तो angles on the same side of the transversal are supplementary, right? तो यहाँ पे same side of the transversal कौन है भाई? इंटीरियर एंगल 4 और 5. जो 4 और 6 है तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 6 विल बी 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं. ठीक है, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, बहुत इजीली आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं. ठीक है, अब आप लाइन को ऐसे बना दीजिए, लाइन को ऐसे बना दीजिए, चाहे लाइन ऐसे है. ठीक है, चाहे लाइन आपकी ऐसे है, देखिए आप. ठीक है, वही मैं कह रही थी, पैरेलल लाइन इट डजंट मीन कि आपको हमेशा पैरेलल लाइन ऐसे दिखेंगी. आपको कभी कभी पैरेलल लाइन ऐसी भी आ जाएंगी. पैरेलल लाइन हो सकता है आपको ऐसे दे दें. ठीक है, तो कभी भी आप पैरेलल लाइंस लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल लेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रॉस चल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जाएगा, अंदर ही क्रॉस हो जाएगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा. बाहर क्रॉस होगा तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा है, लाइट बहुत सा लाइट ग्रीन कलर है. ओके, नाउ शो ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर, आप कह सकते हैं पिंक एंड द ग्रीन वन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जो विजुअलाइजेशन होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज. बहुत easy है, बहुत easy है, just the moment you try to understand. Now they are saying that here angle 1 is equal to 135. Let me debold it first. Okay, now they are saying that angle 1 आपके पास 135 डिग्री का है
और बोल रहे हैं ए बी पी क्यू के पैरेलल है। आप corresponding angles, alternate angles and angles on the same side of the transversal तभी ले सकते हैं जब लाइन पैरेलल हो। ये कंडीशंस ओनली पैरेलल लाइन में होती है, ये भी आपको विजुअलाइजेशन में बता दिया था। ठीक है, तो जब लाइन पैरेलल है तो आप इन सबका कंसेप्ट ले सकते हैं। बाकी बोल रहे हैं सारे एंगल्स निकाल दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन भी है भाई। देखिए वो ये 135 तो ये भी 130। चलो सबसे पहले एफ बनाते हैं, मैंने आपको कहा था ना हम एफ बना के देखेंगे। लेट्स मेक एफ। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे एफ के ऊपर वाला एंगल बन रहा है। ये देखिए ये 135 एफ के ऊपर वाला एंगल, तो ये भी 135 हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट इज द रीजन मुझे बार बार डीबोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मोटा इतना बोल्ड मैं लिखूंगी तो दैट विल नॉट बी विजिबल। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये 135 है, अगर एंगल 135 है, तो एंगल 3 भी 135 हो जाएगा। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आई एम नॉट राइटिंग होल, आप यहाँ पे रीजन जरूर लिखते हैं कॉपी में और ब्रैकेट में। आई मीन जब भी आप क्वेश्चन करें रीजन हमेशा लिखे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है किसके, ए बी और पी क्यू के। ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो आप ले सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने बना दिया ये 135, तो ये भी 135। अब एक बात मुझे बताइए, एंगल 5 और एंगल 4 कैसे ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी 135, सारे रेड वाले 135, कोई इशू? आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो बन रहे हैं, आपको ये भी बताया था कि अगर ये 135 होगा तो ये भी 135 होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं से भी आंसर निकल जाएगा। ये 135 तो ये भी 135 और ये भी 135। रीजन आपको ये 135 तो ये भी 135, रीजन द सेम। व्हाट विल बी द रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं। अब देखिए ये 135 है, तो ये आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, या आप अगर अगर आप पैरेलल का कंसेप्ट यूज करना चाहते हैं, तो मैंने बोला था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने इसको x ले लिया तो आप कह सकते हैं 135 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, and x will be equal to 180 degree minus 135 degree. What that will be? 10 minus 5 5, 7 minus 3, that will be 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 45। अब ये 45 तो 7 भी 45, ये 45 तो ये इसका 2 कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी 45, और अगर 2 कॉरस्पॉन्डिंग है तो 3 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 45। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक सिंगल अगर आपको एंगल दिया हो उसकी हेल्प से आप सारे एंगल निकाल सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आप इसको बहुत सारे सेंस में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, पैरेलल एंगल का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, नो इश्यूज। ऑल्टरनेट एंगल तो दिख ही रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से z ऐसे जा रहा है तो जो 3 होगा वही 6 होगा, है ना। तो आप किसी भी सेंस में लगा सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू MR। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन दैट ये जो PQ लाइन जा रही है ये MR के पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। Okay, now they are finding, we have to find angle PRQ. It means that we have to find out this angle. बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको मान लीजिए x, नहीं पता ना x डिग्री मान लीजिए। अब z तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? चलो मैं दिखा देती हूँ, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, यहाँ से लेट मी टेक द बोल्ड वन। ठीक है, यहाँ से ये गया, ये आया और ये गया, z दिख रहा है। तो अगर ये 60 पैरेलल दिया हुआ है तो ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये 60 बच्चों तो क्या होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60। व्हाई, द रीजन नेम सेम, एंगल पी आर एम will also be 60 degree, reason alternate angles of parallel lines, या आप ऑर्डिनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस आपको ऑलरेडी दी हुई है, ऑफ पैरेलल लाइंस PQ एंड MR। नाउ
नाउ आपको कल एक लीनियर पेयर बताया था, क्या होता है लीनियर पेयर बच्चों, कि एक अगर लाइन हो, ठीक है, उसके ऊपर चाहे जितने भी एंगल्स बन रहे हो उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे आ रहा है x, ये आ गया 60 और ये आ गया 65। क्या मैं नहीं निकाल सकती? बहुत ही ज्यादा इजी है। लाइन है, ये देखिए लाइन है, इस लाइन के ऊपर तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक x है, एक 60 है, एक 65 है, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बहुत सिंपल है, आई कैन राइट x प्लस 60 डिग्री प्लस 65 degree is equal to 180 degree, right? And from here we can say x is equal to 180 degree minus 60 plus 65 कर दीजिए, that will be 125. Subtract it and get the answer. Okay? I hope बहुत easy है, बहुत ही ज्यादा easy है, बस आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करना है। और बिलीव मी इट्स नॉट लाइक दैट पैरेलल लाइन का कंसेप्ट करना है तो प्रीवियस कंसेप्ट नहीं यूज करना है, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट भी यूज करेंगे, लीनियर पेयर भी यूज करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करना है, ठीक है? तो ये चीज याद रखिए। चलिए अब चेक कैसे करें कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। भाई अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और अगर मुझे चेक करना है तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, ठीक है? ओके, और अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी 180 डिग्री है तो भी लाइन पैरेलल है। तो उल्टा है, अगर लाइन पैरेलल है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लाइन विल बी पैरेलल। सो सिंपल, मैंने कहा था ना मैथ्स में बड़ा इजी है लर्न करना, बिग पढ़ना, भाई जितना आधे से ज्यादा चीज तो वाइस वर्सा ही होती है, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ ये क्वेश्चन भी हम यूं कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू चेक दे आर पैरेलल और नॉट, तो चेक करना है, तो चेक करने के लिए एनी हाउ एक चीज निकल जाए, एनी हाउ एक चीज निकल जाए तो हम कर सकते हैं ना। अब देखो ये 35, वेरी सिंपल, ये 35 तो ये भी 35, जरूरी नहीं है आप, इट्स नॉट लाइक दैट कि पैरेलल लाइन में आप वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लगा सकते। अब 140 प्लस 30, 145 प्लस 35 कर दीजिए, 145 प्लस 35 करेंगे तो आप कितना आएगा, 140 और 30 180 आ गया। एंगल्स ऑन द, अब यहाँ पे किसी और मेथड से किया हुआ है, मैं किसी और मेथड से कर रही हूँ, आप दोनों मेथड्स देख सकते हैं, एक स्क्रीन पे है, एक मेथड से मैं करा रही हूँ। आपने बोला ये 35 तो ये भी 35, अब अगर ये 35 तो मुझे दिख रहा है कि द एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कैन आई सी दैट दे बोथ आर 35 एंड 145 degree are on the same side of the transversal. So if this sum will be 180, I can say that since, आप लिखेंगे कैसे, since interior angle on the same side of the transversal are supplementary, so that I can say that LM is parallel to PQ. क्लियर है? मैथ्स में लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो यहाँ पे corresponding angles का concept लिया है, and I'm taking angles on the, if interior angles on the same side of the transversal are supplementary, we can say that those two lines are parallel. Okay, so ये क्विज कर लेते हैं लास्ट, and I hope you will enjoy. Two, okay, ये तो पहले से ही हो गया, two parallel lines intersect at null point. I hope ये सबको क्लियर है, दो parallel line intersect कभी भी तो नहीं करेंगे ना, 1 point 2 point 3 point पे तो सवाल ही नहीं बैठता। चलिए, इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, तो P and Q, ओके, P and Q क्या कॉरस्पॉन्डिंग है? P and Q, नो 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 नो, दे आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग। P and X, नो आई डोंट थिंक सो। P इधर है, X इधर है, कॉरस्पॉन्डिंग में F याद रखिए, कॉरस्पॉन्डिंग में F याद रखिए। चलिए F बना लें, ये देखिए ऐसा F बन रहा है, ये और ये F बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसमें क्या होगा, P और W। ओके, आई होप ये क्लियर है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, इसमें विच आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, 3 and 5, 3 and 5, नो, पहला ही मिल गया, 3 and 5 दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग, 3 and 7, आप F बना के देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो 3 and 5 बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ये लाइन पैरेलल्स है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, यू कैन अप्लाई योर ओन मेथड, मैं बहुत सिंपल कर रही हूँ। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, लेट मी, यस, ये 60 है तो ये भी 60, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर बना रहा है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, लीनियर पेयर ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ये देखो, ये एक लाइन जा रही है और इस लाइन के ऊपर तीन एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, लेट मी हाईलाइट देम। एक एक्स बन रहा है,
एक और x बन रहा है और एक 60 बन रहा है, तो कांट आई राइट लाइक दिस x plus 60 degree is equal to 180 degree? I can write like this. So 2x will be equal to 180 minus 60, that is, और यहाँ से आप x की वैल्यू 60 आ जाएगी. क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, तो ये चीजें आप, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल, वैसे भी एमसीक्यूजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. You have to find out if the L and M are parallel to each other. You have to find out the value of x and y. ठीक है, कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो. देखो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, ये 50 होगा तो ये भी 50. नहीं, ये दो लाइन पैरेलल्स तो दी नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये 50 है तो ये 50 नहीं होगा. ये दोनों लाइन पैरेलल्स दी है और ये इनका ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो आप 65 की हेल्प से निकालेंगे और 50 की हेल्प से निकालेंगे. ठीक है, करिएगा. नहीं आएगा तो आई विल टेल यू. बहुत सिंपल है, बहुत ही बहुत सिंपल है. ठीक है, कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ये 50 तो ये भी 50, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये y अगर 65 है तो ये 65 ये ऊपर वाला भी हो जाएगा, तो यहाँ से y प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है. और आप बहुत सारे मेथड्स कर सकते हैं, मैं आपको लीनियर पेयर की हेल्प से करा रही हूँ, आप पहले लाइन का ही कंसेप्ट ले लीजिए. ओके, ले सकते हैं. चलिए, ये वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था, सबका मेजरमेंट निकालने के लिए कह रहे हैं. इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव मेजर्ड दिस वन, हमने ये मेजर किया था. अब ये कह रहे हैं सबका मेजरमेंट कर दो, तो आप कर सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट है, आई नो दैट. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे सकती हूँ. देखिए इसमें व्हाट आर दे सेइंग, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, आपको बीओडी निकालना है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है. तो बच्चों ये पूरा एंगल तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्यों ना इसके लिए कंस्ट्रक्शन करें. कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगी, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन खींच दूंगी. जो ये लाइन होगी ना, ये दोनों लाइन के पैरेलल होगी. अच्छा, ये तो आ ही नहीं रही है लाइन. ओके, लेट मी, ओह सो सॉरी. ओके, ऐसे ही ले लेते हैं. ऐसी एक लाइन ड्रॉ करिए जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल हो, विच इज पासिंग थ्रू ए. ये आपको लिखना है. अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन. अब तो बोलो मैम न्यू हो गया. भाई ये 50 तो ये भी 50, क्यों आधा 50, भाई ब्लैक में से मुझे आधा मिल गया 50. और अगर ये 40 तो ये भी 40. जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो जेड बन रहा है, ये यहाँ से जेड बन रहा है और ये यहाँ से जेड बन रहा है. बस 50 प्लस 40 आपका आ गया. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए, और ये भी आप कर सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज इट एंड डू इट. बहुत सिंपल है. 65 तो ये भी 65. भाई देखिए, इट्स नॉट लाइक दैट पैरेलल लाइन थे तो आप लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो याद है सब यूज होगा. ठीक है, एबीसीडी निकालना है, डू इट योरसेल्फ. दोनों लाइन पैरेलल दिया, याद रखिएगा. एल एम के पैरेलल दिया है और पी क्यू के पैरेलल दिया है, दोनों साइड से पैरेलल दिया है, तो मजे ही मजे हैं. बस एक निकालोगे सब निकल जाएगा. Okay, so I hope it is clear to everyone. So I hope you have learned all these things. What is transversal? So transversal बहुत simple है भाई. दो लाइन को अगर एक लाइन कट कर रही है, तो ये जो कट कर रही है that is called the transversal. ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, तो ऑलरेडी लाइंस है. अब अगर पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री हो जाते हैं. क्लियर है? तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर आपको सेशन में मजा आया, आपको लगा कि मैम ने यस इंटरेस्टिंग पढ़ाया है, एंड यस मोस्ट ओवर द विजुअलाइजेशन अगर आपको पसंद आए हैं, तो यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट इन द चैट बॉक्स. सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. और भाई लाइक तो कर ही दीजिएगा सेशन को, इतना तो बनता है, राइट? सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय. Keep learning, keep practicing, because in mathematics there is no shortcut but only practice. Okay, so bye bye, take care.